Hello everyone. Finally, UPSC Civil Services examination of 2025 is over, and I congratulate all the students who have written this year. And I really wish that they get to see their names in the final leg also. They deserve a big break, so you should just take a good breather before you get back to the studies. But for those who are appearing in 2026 and beyond, this is the right time for us to analyze the paper and to see how we can channelize our preparation in the right direction. So what we'll do as a part of this video is we are going to analyze paper 2 of PPSIR optional, and I'll try to link it with the themes which have been asked, and we will map it to the syllabus topics also directly. We'll see how much current affairs oriented the paper was, to what extent the PYQs were relevant. We'll dissect each and everything. And what I have done is I've penned down all my findings in the form of a PDF, which is attached in the description box of this video, and it's also available on the website, so you can go download it and maybe read it in peace also. But as of now, I'll take few of your minutes so as to make sense of what the paper 2 was all about. So let's delve into paper 2. This is the compulsory part. So question number 1, discuss the psychological approach to the study of comparative politics. Now, if I talk about the theme, it is from the very first topic, which is the comparative politics, nature and major approaches. Almost every year we see a question from here, but what has been happening in the last 2 years is that from this very topic, when we talk about comparative politics, so generally in comparative politics, we have the traditional and the modern approaches. And the UPSC has been asking questions on traditional approaches, their criticisms. With respect to the modern approaches, UPSC has been generally asking questions around the systems approach, the structural functional approach, the political economy, or the political sociology approach. But the modern approaches further have many other, I would say, further themes, which include the subjective approach, the socialization approach, the psychological approach, from where a question has been asked this time. So I would say they have gone into a little bit too much detail, which they generally did not go in the previous, I would say, papers. From here, one question has come, and in my opinion, this was a question which was not an easy question, because not a lot of students would be comfortable with this particular approach to the study of comparative politics. So I'll put it in the difficult category. So what I have done for you is there is this another uh, PDF through which we'll quickly map it to the syllabus part, and at the same time uh, I have done the analysis whereby uh, I have made this particular PDF for you, in which I would say this question I'll place in too much detailed analysis. So they were expecting probably that you go into a little bit more detail, which generally we are not going. And with respect to last year also, there was a similar kind of a question. So last 2 years, so from the last 2 years, including this year, there is this kind of a detailed emphasis which is expected by the examiner. That's the first insight from the first question. Okay. Then you have neoliberalism, lightened neorealism's dark view of international politics. It's it's a simple question. It has come from this part of the uh, syllabus, whereby we study the approaches to the study of international relations, whereby we study the idealist, we study the realist approach, and there have been number of questions on the idealist and the realist approaches. So I would not say that this is a question which is new, too much detailed. No, it's a very simple question. It's asking how neoliberalism is basically trying to correct neo-realism, or essentially they're asking you what are the bases of neoliberalism. So you'll have to talk about the cooperative elements of neoliberalism. You have to involve in your discussion the emphasis of Woodrow Wilson, and from there you will have to talk about the world order after the Second World War, and the international norms, and the creation of UN, and the creation of a rules-based order. So they're expecting such kind of a answer from you. But I would say a lot of questions have been asked earlier from realism, from uh, liberalism, from neoliberalism.
on the same lines the question was there, so I would not read too much into the question. uh, Explain the non-traditional security threats in context of food and environmental crisis. Now we have the contemporary global concerns environment topic, and we have a security topic in the key concepts part. So from there, if you see, they are related, but the non-traditional security threats, they have been asked by UPSC in the previous years also, whereby a lot of emphasis has been given on human security. Now with the human security, we study various other kinds of security which is associated, in which the environmental aspects, the food aspect, the energy aspect for that matter, these things are interlinked. uh, I would not say again this is a question which is on the tougher lines or a question which should not be known by the others. So जो आपके साथ में अच्छे से पढ़ाई कर रहा है उसको ये क्वेश्चन आता होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कौन सा आता था और कौन सा नहीं, क्योंकि एक रिलेटिव लेवल पर असेसमेंट होगी, और इसमें मैं कहूंगा फर्स्ट क्वेश्चन शायद हो सकता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स को नहीं आता होगा, बट सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन ये आते होंगे जिसने भी अच्छे से पढ़ाई की है। तो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स को मैं बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं मानता। हाँ, कंटेम्प्रेरी ग्लोबल कंसर्न से क्वेश्चन आता ही है, की कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन आते हैं, इस बार भी सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट से आया है, आगे जाकर देखिए तो इसी कॉन्सेप्ट में कलेक्टिव सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट पर भी क्वेश्चन। Then comes the question, discuss the political socialization of open and closed societies. Now if you see, यहाँ पर comparative politics nature and major approaches से क्वेश्चन आया है, यहाँ पर फिर से ये major approaches, and unfortunately ओपन एंड क्लोज सोसाइटीज की बात हम पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की अप्रोच में करते हैं, तो मैंने इसको क्लासिफाई किया है आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन में, बिकॉज एज सच पॉलिटिकल सोशलाइजेशन जो पर्सपेक्टिव है वो सिलेबस में नहीं लिखा गया है। सिलेबस में क्या लिखा गया है? ट्रेडिशनल अप्रोचेस, मॉडर्न अप्रोचेस, उसके बाद लिखा गया है सिस्टम्स अप्रोच, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉलिटिकल सोशल। इसके अलावा और भी बहुत सारी अप्रोचेस होती है, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन अप्रोच भी होती है, कल्चर अप्रोच भी होती है। We don't study that because it's not part of the syllabus. Political socialization approach में हम इस बात को बहुत क्लियरली पढ़ते हैं कि ओपन एंड क्लोज सोसाइटीज की सोशलाइजेशन कैसे होती है, तो ये क्वेश्चन वहां से इस बार पूछ लिया गया है। बट अगेन अगर ये आपके लिए टफ था तो पॉसिबल है ये सभी PSIR एस्पिरेंट्स के लिए टफ रहा हो, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्योंकि इन अ वे ये आउट ऑफ सिलेबस टाइप का क्वेश्चन है। मे बी समबडी हु हैज डन देयर ग्रेजुएशन इन PSIR दे वुड हैव बीन एबल this, otherwise this is not a part per se of the syllabus. Okay, then you have a comment on the red lipstick movement in context of feminist rights. Now it is a current affairs based question, so I have placed it here, यहाँ पर मैंने current affairs based questions क्लब किए हैं इन पेपर 2 पार्ट ए। तो पार्ट ए में जो करंट अफेयर बेस्ड थीम्स हैं उसमें मैंने इसको क्लासिफाई किया है रेड लिपस्टिक मूवमेंट। दिस इज अ पार्ट ऑफ द मूवमेंट्स व्हिच हैव कम अप आफ्टर द कमिंग ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प टू पावर in 2025. After that, a lot of decisions which were taken by Trump, the executive decisions which were taken by Trump, तो उसमें ट्रम्प ने कहीं ना कहीं जो LGBTQ प्लस कम्युनिटी के लिए जितने भी लिबरल रिफॉर्म्स हैं उनको रोल बैक करने की कोशिश की है, एंड ही मेड अ स्टेटमेंट कि ओनली 2 genders विल बी रिकॉग्नाइज्ड। तो उस कॉन्टेक्स्ट में एंड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अदरवाइज द रेशियल स्लर्स और द सुप्रीमेसिस्ट इंक्लिनेशंस which were taken by Trump, उसके कॉन्टेक्स्ट में एक प्रोटेस्ट मूवमेंट आई थी यूएस में, उसको बोलते हैं रेड लिपस्टिक मूवमेंट। एंड ये अभी आज की मूवमेंट नहीं है, पहले भी ऐसी मूवमेंट हो चुकी है, बट पहले वो वुमेन के वोटिंग राइट्स को लेकर हुई थी। इस बार वो ट्रम्प और ट्रम्प की पॉलिसीज की ऑपोजिशन में हुई थी, एंड वहां से उन्होंने इस क्वेश्चन को सोर्स किया है। आई हैव प्रोवाइडेड द लिंक ऑल्सो, एक टाइम्स ऑफ इंडिया का लिंक है जिसमें इसके बारे में बात की गई थी, तो ये 2025 की स्टार्टिंग की न्यूज है, वहां से ही क्वेश्चन को बनाया गया है। सिलेबस की बात करूं तो कंटेम्प्रेरी ग्लोबल कंसर्न्स का पार्ट है। कंटेम्प्रेरी ग्लोबल कंसर्न्स को अगर देखते हैं तो यहां से भी काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। यस, तो हमारे पास कंटेम्प्रेरी ग्लोबल कंसर्न्स में डेमोक्रेसी है, ह्यूमन राइट्स है, एनवायरनमेंट है, जेंडर जस्टिस है। तो ये जेंडर जस्टिस का एलिमेंट यहाँ से उठा लिया, बिकॉज एज सच फेमिनिज्म इन IR ये तो थीम है नहीं हमारे पास सिलेबस में, बट डिस्पाइट दैट फेमिनिज्म इन IR को हम पढ़ते भी हैं, प्लस कंटेम्प्रेरी ग्लोबल कंसर्न्स में जेंडर जस्टिस को उठा लेते हैं, और उस
को मिला के वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट वाज गोइंग ऑन, बट अगेन आई वुड से इट इज ऑन द टफर साइड। ये टफर साइड पर है, ये टफर और भी हो जाता है क्योंकि ये कंपल्सरी क्वेश्चन है, तो आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। So if you did not have any kind of idea with respect to what this movement is all about, it is very much possible that you will not be getting any marks here. तो आपको यहाँ पर जो भी लिख कर आएगा उसमें कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो पहले 5 क्वेश्चंस में ये पेपर टफ हो जाता है, बिकॉज ये वाला पार्ट टफर साइड पर है, ये वाला पार्ट इन अ वे आउट ऑफ सिलेबस है, ये वाला पार्ट अगेन करंट अफेयर्स बेस्ड है और टफर साइड पर है, ठीक है। हाउएवर एक और चीज भी यहां से निकल कर आती है कि पहले 5 क्वेश्चन में ही आप देख लो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के 2 क्वेश्चन आ गए, तो डिस्प्रोपोर्शनेट एम्फेसिस आपने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को पहले क्वेश्चन में ही दे दिया। ये भी एक हमारी लर्निंग है, बट इट इज व्हाट इट इज। यूपीएससी इज नॉट नोन टू बी फेयर पर से। Now, second question. The world currently has been in the throes of the twin process of democratic backsliding and democratic backlash. How would you explain this paradox? तो democratic backsliding का word काफी समय से यूज हो रहा है। Democratic backsliding का मतलब होता है that slowly democratic तरीके से ही democratic institutions की पावर को धीरे धीरे कम करना, जिसमें I'll give you the example. इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जब इलेक्शन कमीशन की बात की जाती है तो कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन के कॉन्टेक्स्ट में जो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है वो भी रिसेंटली बदला गया है। इसके लिए एक और क्वेश्चन भी आया है पेपर 1 में हमारे पास, तो उसकी बात बाद में करेंगे। पेपर 1 के लिए भी एक डिस्कशन वीडियो बनाऊंगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जब बात की जाती है कि इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, तो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस अभी रिसेंटली चेंज किया गया है। उसके लिए एक नया बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, जो फाइनली जब एक्ट बनने से पहले उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिबेट हुई, ऑपोजिशन ज्यादा डिसरप्शन की पार्लियामेंट में। उस समय मोर देन 140 एमपीज को सस्पेंड किया गया था। तो इट वाज अ ह्यूज इवेंट इन 2023, लेटर पार्ट ऑफ 2023। तो 2024 में जनरल इलेक्शन थी, उससे पहले ये करना था। एंड फिर उसके बाद एकदम से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपना इस्तीफा दे दिया, नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया गया। एंड अभी रिसेंटली भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैज बीन क्रिटिसाइज्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट विद रिस्पेक्ट टू द फियास्को व्हिच इज गोइंग ऑन इन बिहार। तो अगर इस पूरे सिनेरियो में मैं लीगली अपॉइंटमेंट प्रोसेस में सरकार का हाथ ज्यादा रखता हूं, और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड आल्सो बी इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ, तो हटा देता हूं, तो यहां पर आप एक क्रिटिकल व्यू में ये कह सकते हैं कि आपने लॉ के थ्रू ही इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट प्रोसेस को इस तरीके से कर दिया कि वो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन डाइल्यूट हो गया। अगर मैं इस तरीके से डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ करता चलूं, जिससे कि कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव के पास सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो जाए, मान लो मैं लॉयलिस्ट बिठा देता हूं सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, उसको भी डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग एग्जाम्पल में डाल दिया जाए। लॉफुली if I keep on diluting the mandate of various institutions, that's example of democratic backsliding. Is that happening? Because ये बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है। प्राइमरीली ये क्रिटिसिज्म होता है हंगरी में, ये क्रिटिसिज्म होता है टर्की में, because their leaders what they have done is they have tried to concentrate a lot of power and they have tried to dilute the authority of various other bodies. In context of India also opposition has sometimes tried to say the same thing. ये होती है डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग, पहली बात। तो अब होती है डेमोक्रेटिक बैकलैश। क्या है डेमोक्रेटिक बैकलैश? है कि डेमोक्रेसी को खतरा है और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए मूवमेंट्स हो रही है। अगर ऐसा होता है, साउथ कोरिया में प्रेसिडेंट को इम्पीच कर दिया गया बिकॉज प्रेसिडेंट के एक्शन को ऐसा माना गया है कि वो डेमोक्रेसी को थ्रेटन कर रहे हैं, एंड टू सेफगार्ड दैट देयर इज अ बैकलैश कमिंग from the people, from the civil society, in the form of civil, let's say in the form of social movements. तो इसको मैं बोल रहा हूँ डेमोक्रेटिक बैकलैश। वो कह रहा है दोनों देखने को मिल रहे हैं दुनिया में। इसके ऊपर तुमसे कमेंट मांगा गया है। फॉर दिस यू नीड टू हैव नॉलेज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट वाज हैपनिंग इन द लास्ट अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 years, जिसमें ये प्रोसेसेस चल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन एज सच कोई करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। द प्रोसेस इज ऑनगोइंग। अभी कुछ साल पहले यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था विद रिस्पेक्ट टू द फैक्ट कि डेमोक्रेसी की इंस्टीट्यूशनलाइजेशन साउथ एशिया में बड़ी मुश्किल है। क्यों है? नेपाल केम अप विद द कॉन्स्टिट्यूशन, बट वहां पे झगड़ा हो रहा था। पाकिस्तान में चल नहीं पाता है। बांग्लादेश में अभी रिसेंटली फिर से खत्म हो गई है। श्रीलंका वाज गोइंग थ्रू क्राइसिस। सो व्हेन ऑल दिस थिंग्स वर गोइंग ऑन, उन्होंने पूरे रीजन को कंबाइन करके कह दिया डेमोक्रेसी की इंस्टीट्यूशनलाइजेशन अभी बहुत स्ट्रांग नहीं है साउथ एशिया। इस पे एक कमेंट मांगा गया था। So what you need to know is
this kind of a holistic perspective with respect to things. So don't worry too much about collecting content. Worry about connections. कि are you able to make these connections? यहाँ पर I am expecting some people might have gotten confused with respect to backsliding or backlash also. ठीक है, तो अब they have gone into a little bit more detail and they have asked you how do you explain this paradox. So it's difficult for us to actually explain this paradox that in one part of the world it is considered acceptable that yes you go ahead because of certain factors which have to do with economy, which have to do with the nature of politics, which have to do with the rise of right wing, but on the same time it there is a certain uh, institutionalization of democracy in countries where the people they are much more engaged politically. जैसे हना अरेंट से पॉलिटिकली एंगेज होना चाहिए, एरिस्टोटल से आई एम नॉट सेइंग कि आपको ये सब लिखना है, नो नहीं, ठीक है, बिना बात से पेपर वन को मत लेकर आओ, जहां पर जरूरत नहीं है प्लीज डोंट ब्रिंग इट, जस्ट इन द नेम ऑफ की कनेक्शन बनाना है, इट्स नॉट एट ऑल नीडेड, नोबडी कोई पेपर टू जो करेक्ट कर रहा होगा वो ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि तुम हना अरेंट बीच में डालो, तो धक्के से भी मत डालना, बट हाँ वो आइडिया पता होना चाहिए क्योंकि साउथ कोरिया में जिस टाइप की सोसाइटी है वो कहीं ना कहीं एक बैकलैश करने को तैयार है, वहां पे पॉलिटिकल एक्शन हो रहा है, वहां पे मासेस मोर अवेयर है, ठीक है, वहां पर एज सच यू विल नॉट सी काइंड ऑफ let's say a kind of a disillusionment with democracy is not there. तो वो पैराडॉक्स एक्सप्लेन करने के लिए तुमको दोनों तरफ से उसकी पॉलिटी, उसकी इकोनॉमी और उसकी सोसाइटी में क्या चल रहा है उस पे उसके ऊपर एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. And to have this understanding, I'll not ask you to go and read a number of things. If you're reading your The Hindu and Indian Express and trying to make connections, that's more than sufficient. हाँ, डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग और बैकलैश क्या होता है ये तो बता होना चाहिए, तो उसके बिना नहीं हो पाएगा कोई, ठीक है. इसको हम डाल रहे हैं स्टेट इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव के टॉपिक में अगेन, और कंटेम्प्रेरी ग्लोबल कंसर्न्स में डेमोक्रेसी, तो दोनों को मिलाकर यहां से क्वेश्चन बनता है ये. The withdrawal of USA from WHO is said to have far-reaching impacts on global health. Reimagining the existing WHO is vital for global health. Discuss. This question is primarily from current affairs simply because of the fact that US has decided to withdraw from WHO. तो उस कॉन्टेक्स्ट में सवाल बना दिया, बट हमारे पास यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज वो हमारे पास टॉपिक भी है, वहां से भी क्वेश्चन बनता है. अब सवाल ये आता है कि यूएन की इतनी सारी एजेंसीज है, सब थोड़ा करने बैठ जाएंगे, बट जब आईसीजे न्यूज में थी तब आईसीजे का क्वेश्चन आया, जब डब्ल्यूएचओ न्यूज में है तो डब्ल्यूएचओ का क्वेश्चन आया. फ्यू इयर्स बैक यूएसए विड्रू फ्रॉम यूनेस्को ऑल्सो, तब जीएस में सवाल आया था कि यूनेस्को से रिलेटेड, तो आपको करंट अफेयर से थीम मिल जाएगा, उसके ऊपर यू शुड हैव 2 पेजर जो आप मे बी 2 या 3 आर्टिकल से कलेक्ट कर सकते हो, दैट्स इट. उतने में यू विल बी एबल टू अटेंड दीस क्वेश्चन. ओके, then transnational actors have qualitatively transformed the world by the way of their fresh insights and actions. आसान क्वेश्चन है, की कॉन्सेप्ट से आया है, तो इफ यू सी की कॉन्सेप्ट से पहले भी क्वेश्चन आ चुका है सिक्योरिटी का, दोबारा की कॉन्सेप्ट से आ रहा है ट्रांसनेशनल एक्टर्स के. नाउ यहाँ पर ट्रांसनेशनल एक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ एमएनसीज, इन द फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, इन द फॉर्म ऑफ इवन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, you will have to take each example and show that how they are influencing the world politics. So one example which I always give in the class is जब हम बात करते हैं let's say वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है तो एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया गया और दिस ऑर्गेनाइज्ड इवेंट, बट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में आप देखो वर्ल्ड के बड़े बड़े लीडर्स पहुंचते हैं, तो वो एक सिविल सोसाइटी लेड इनिशिएटिव है जिसमें दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स पहुंचते हैं, एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी इंपॉर्टेंट क्योंकि वहां पर डिस्कशन अच्छी होती है. तो इट हैज बीन गोइंग ऑन सिंस अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो डब्ल्यूईएफ की जब बात करते हैं तो वो एक ट्रांसनेशनल एक्टर है, और आपको बताना पड़ेगा दैट हाउ दीज कंटिन्यूस इवेंट्स आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड. इसके लिए आई वुड सजेस्ट ग्लोबल पॉलिटिक्स बाय एंड्रू हेवुड इज अ वेरी गुड बुक. उसमें आपको बहुत सारे ऐसे ऐसे इवेंट्स मिल जाएंगे, तो बिना बात के इधर उधर के नोट्स वोट्स में मत जाओ, उससे सवाल नहीं आते हैं. किताब से सवाल आ रहा है, करंट अफेयर से सवाल आ रहा है, और सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, नॉट अ वेरी टफ क्वेश्चन बट इट डिमांड्स एग्जांपल्स.
You'll have to provide that kind of examples. uh, अब इसमें घबराना मत, by the way of their fresh insights and actions. As such, you will not be able to, pinpoint fresh actions and sorry, the fresh insights and actions. हो सकता है आप ये pinpoint नहीं कर पाओ. It's okay. It's just a framing of the sentence. If you get confused there कि अच्छा ये fresh actions क्या है, नहीं. They're simply asking you इनका रोल क्या है, इन्होंने कैसे इम्पैक्ट किया है. तो थ्योरी में क्या इम्पैक्ट किया है, प्रैक्टिस में क्या इम्पैक्ट किया है. फॉर एग्जाम्पल रियलिस्ट इनको मानते ही नहीं है. रियलिस्ट तो कहते हैं अब आज की डेट में भी आपने यूएन क्लॉज बना दिया, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, यूएन है, यूएन में क्या हो गया, यहाँ पे आपने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज बना दिया. टिल द टाइम इट बेनिफिट्स चाइना, चाइना विल एग्री, चाइना विल अबाइड. द डे इट डज नॉट बेनिफिट, चाइना इसको नहीं मानेगा. और अभी फिलीपींस के कॉन्टेक्स्ट में जो भी हो रहा है, वी सी द लाइव एग्जांपल. I have an international institution in the form of a United Nations which is making a law which is an international law which is a part of my norms based order, but it's not. Okay. तो यहाँ पर एडिशन तो है, मैं उसको पहले अप्रिशिएट भी करूंगा दैट अ ग्लोबल नॉर्म हैज बीन क्रिएटेड एज पर विच एक्चुअली the governance is being done, but the realist will say that over a period of time it is it is being observed because it serves a purpose. So you'll have to give this kind of an insight. उसके लिए ट्रांसनेशनल एक्टर को जब पढ़ते हैं तो एग्जांपल भी देते हैं, थ्योरी भी, वहीं से हो जाएगा. अब देखो, डोंट go for rote learning because you will not be able to write a lot of things. टाइम नहीं होता है. दूसरा, यहाँ पर कनेक्शन बनाना, उसको कलेक्ट करके उसको प्रेजेंट कर पाना, इसकी कैपेबिलिटी ज्यादा जनरेट करो. तो जो भी कंटेंट है आपके पास, for those who are appearing next year or next to next year, जो भी कंटेंट है, कंसोलिडेट एंड कंसोलिडेट, उसको एक साथ इकट्ठा लाओ, उससे इंटेलिजेंस निकालने की कोशिश, जो कहना क्या चाहता है, इंस्टेड ऑफ उसको रट्टा मारना, बिकॉज दैट डजंट वर्क. वो आएगा ही नहीं तुम्हें काम पेपर में. Of late, centrist and center-left political parties are facing setbacks, while center-right parties have been in ascendancy in the world over. Current affairs based question है, but still पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन में पॉलिटिकल पार्टीज आता है, वहां से क्वेश्चन रिलेट किया जा सकता है. I'll come back to this part of the discussion. पेपर डायनामिक है. पेपर ए, पार्ट ए जो पेपर 2 का है, उसमें हमने पहले रेड लिपस्टिक मूवमेंट को करंट अफेयर में डाला, फिर WHO का विड्रॉल को डाला, और ये वाला पार्ट भी मैंने इसको करंट अफेयर बेस में डाला है, बिकॉज आई हैव गिवन यू अ लिंक ऑल्सो, हिंदू का ही है. द राइट राइजेस and Europe is in the state of denial. So rise of right wing parties, rise of right wing leaders, इटली में हो रहा है, फ्रांस में हो रहा है, हंगरी में हो रहा है, पोलैंड में हो रहा है. सो व्हाट वी सी इज, हिंदू के वर्ल्ड पेज पे तुमको मिलेगा ये सब. कनेक्शन कितना बना पा रहे हैं, बस वो वही कह रहे हैं. सेंटर राइट की पार्टीज, दे आर एबल टू जनरेट, they are able to get more votes, they are able to mobilize people more, they are getting more votes, center right parties instead of the left and the center left parties. तो अभी उसकी डिटेल में नहीं जा सकते, अभी इस वीडियो में मैं इतना डिटेल में नहीं जाता, बट दैट्स द बेसिक आइडिया. कलेक्टिव सिक्योरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट की बात पूछी गई है, हाउ दे आर डिफरेंट. तो दोनों सिक्योरिटी की बात करते हैं, बट R2P comes into picture primarily in context of the violation of human rights and it's a last resort. Collective security is generally in context of aggression. वहां पर आती है कलेक्टिव सिक्योरिटी अगर कोई नेशन अग्रेशन करता है. रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट तब आती है जब एक स्टेट अपने ही लोगों के अगेंस्ट अग्रेशन. कलेक्टिव सिक्योरिटी तब आएगी जब कोई और देश एक देश के अगेंस्ट अग्रेशन कर रहा है. तो द स्कोप इज डिफरेंट. मेथड्स पे नहीं जाते हैं, थोड़ा सा डिटेल में हो जाएगा. R2P के मेथड्स में पहले नेगोशिएशन है, डिप्लोमेसी है, उसके बाद फाइनली यूज ऑफ अग्रेशन होता है. ग्लोबल साउथ सेंसिटिव मॉडल ऑफ ग्लोबलाइजेशन would prevent the danger emanating from over centralized globalization. ये over centralized globalization is basically which is happening in China. Global South sensitive model, इसकी बात Dr. S. Jaishankar has been doing after COVID, that we need a decentralized model of globalization. The same thing was discussed by Modi also in a summit, a NAM virtual summit. Not the summit, I beg your pardon, summit नहीं थी, NAM की मीटिंग थी, in which virtual format में हुई थी 2020. तब Modi also talked about a human centric form of this globalization.
ये थीम सबसे चल रहा है. लास्ट ईयर ऑल्सो देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन दिस थीम, दोबारा पूछा गया. ग्लोबल साउथ के लिए बेनिफिशियल है, not a new question per se. Latin America has made moderate success in countering US-led global economic order by forming various organizations जो emphasize करती हैं regional sovereignty, economic integration, alternate development पर. एंड उसके बाद ASEAN +3. अब ये दोनों क्वेश्चन मैं कहूंगा दोनों रीजनलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स के क्वेश्चन है. अनफॉर्चुनेटली अ लॉट ऑफ एम्फेसिस unnecessarily on this topic. ठीक है, चलो, वी आर नॉट इन द पोजिशन टू जज यूपीएससी एंड the faculty members who will finally deciding on the paper, but यहीं से दो क्वेश्चन पूछे गए हैं और 4A और 4B में है, तो आपको या तो पूरा ही छोड़ना पड़ेगा ये वाला पार्ट. इन माय ओपिनियन इफ आई वाज एट योर प्लेस, मैं छोड़ देता, बिकॉज ASEAN+3 की बात भी हम जनरली नहीं करते हैं. आसियान एज ए रीजनल एंटिटी की बात की जाती है, नाफ्ता की बात की जाती है, सार्क की बात की जाएगी, जो साफ साफ सिलेबस में लिखा है. ASEAN+3 लिखा भी नहीं है. प्लस लैटिन अमेरिका की जो बॉडीज हैं जनरली दे आर ऑन द टफर साइड इन द सेंस कि फर्स्ट गो में आप नहीं पढ़ोगे. शायद आप एक बार पूरी PSR कर चुके हो, उसके बाद यू माइट गो एंड रीड अबाउट दिस, बट आई वुड से ये टफर साइड पर है. एक ही टॉपिक से दो क्वेश्चन पूछ लिए गए, टफर साइड पर है. स्टूडेंट्स को नहीं आता होगा, आइडली छोड़ देना चाहिए था. फिर सवाल पूछा है, Trump's return to White House is a jolt to push the European Union to invest in its own defense, economic and technological revival. ये अगेन करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है, कनेक्शन बनता है चेंजिंग पॉलिटिकल ऑर्डर वाला टॉपिक है जो वहां से. ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा टफर साइड पर है, बिकॉज उसके ऊपर डिस्कशन चल रही थी, हमारे पास बहुत कमेंट्स भी हैं ऑफ द यूरोपियन लीडर्स, तो उससे हम एक अच्छा आंसर लिख सकते थे 15 मार्कर का. इट वाज नॉट दैट टफ ऑफ अ क्वेश्चन. ठीक है, तो ये कुछ इनसाइट्स है जो यहाँ पर ऑलरेडी लिखे हैं. एक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन का इनसाइट है, एक पेपर 2 के पार्ट ए में करंट अफेयर बेस्ड थीम्स मिली हैं हमें. इसके बाद कुछ डिटेल ज्यादा एनालिसिस है, कुछ डिस्प्रपोर्शनेट एम्फेसिस भी है, जिसमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पर डिस्प्रपोर्शनेट एम्फेसिस देखा हमने, थोड़ा सा डिस्प्रपोर्शनेट एम्फेसिस उस पर भी देखी है, रीजनलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स के. बट ठीक है तो है. अब अगर बात करूं इसके बाद जो पार्ट बी है पेपर 2 का, विच इज द वर्ल्ड पॉलिटिक्स पार्ट, वहां से I'll keep the discussion brief. I just want to give you few insights कि देखो questions कैसे पूछे जा रहे हैं. पहला क्वेश्चन है चाइना का बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में, करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है. आफ्टर द फॉल ऑफ शेख हसीना गवर्नमेंट, द चाइनीज inroads into Bangladesh, they have been continuously increasing. Bangladesh के the acting the interim government's I would say chief, when he went to China, he made a comment with respect to the northeast. इस सारे कॉन्टेक्स्ट में a lot of discussion has been done on the increasing China Bangladesh connect, and उस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ लिया. करंट अफेयर का क्वेश्चन है, सीधा सीधा, आई वुड नॉट से बहुत टफ है ये. सबको आइडली एवरीबडी शुड बी एबल टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. फिर आता है, वुड यू एग्री विद द कंटेंशन दैट इंडिया की इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स मोर अग्रेसिव हाइपर रियलिस्ट पोस्चर आफ्टर द पहलगाम टेररिस्ट स्ट्राइक. अगेन a lot of discussion has been done. हम हो गए हैं अग्रेसिव हो गए हैं, हाइपर रियलिस्ट डोमेन में जा रहे हैं. ये कहना सही नहीं है. क्यों? क्योंकि हमने इंडस वाटर ट्रीटी को ओके गुड बाय नहीं कहा है. ठीक है, हमने कहा है वील पुट इट इन अबेयंस. अबेयंस खुद डिफाइंड नहीं है, तो वी हैव डेलिबरेटली केप्ट इट एम्बिगुअस. एंड इफ वी लुक एट द रीसेंट इवेंट्स व्हिच आर हैपनिंग, तो हम ऑफिशियल लेवल पर ना जाकर अनऑफिशियल लेवल पर अभी भी पाकिस्तान के साथ विद रिस्पेक्ट टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी काम कर रहे हैं, तो वो नहीं छोड़ा जा सकता है. मोर एग्रेसिव बिल्कुल कहना है. ठीक है, हाइपर रियलिस्ट अप्रोच एज सच नहीं कही जा सकती अभी भी. और देखो, अब ऐसे क्वेश्चंस में यू कैन, इट्स वेरी सब्जेक्टिव, हो सकता है किसी के लिए हो भी, तो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं है कि आप इसको यस या नो में आंसर दो. आपके लिए एक्सपेक्टेड ये है कि आप एक पूरी पिक्चर बताओ दैट यस, एज कंपेयर टू 2016 2019, डेफिनेटली जो 2025 में हमने लेट्स से रिस्पॉन्स दिया है, दैट इज डेफिनेटली मोर अग्रेसिव. एंड उसको आप नंबर्स के साथ प्रूव करो. आप ये बताओ दैट हाउ इनिशियली हम पीओके के एरियाज में पहले लेट्स से वी वर neutralizing them. Now we have gone deep inside Pakistan also.
and we have neutralized them. So talk about the numbers and the data which has been provided by the Indian Armed Forces. वहां से आप एक कमेंट कर सकते हो कि यस अग्रेसिव तो डेफिनेटली हो गया है, ठीक है। और इट हैज गेन्ड अ न्यू मोमेंटम। आई थिंक ये भी बिल्कुल सही है कहना कि डेफिनेटली न्यू मोमेंटम आ गया है। टू व्हाट एक्सटेंट हाइपर रियलिस्ट है? नहीं, हाइपर रियलिस्ट कहना वुड बी टेकिंग एन अप्रोच विच यूएसए टेक्स टुवर्ड्स ईरान, या वैसा कुछ नहीं है। दैट्स स्टिल नॉट देयर, बट अगेन इस पर आप लिख सकते हो, ठीक है। यू कैन राइट अ गुड, यू कैन राइट एन आंसर जिसमें आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। आई विल नॉट से कि डुएबल नहीं था। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर वुड ऑल्सो मीन अ मल्टीपोलर एशिया। अच्छा क्वेश्चन है, फॉरेन पॉलिसी का सवाल है, नैम के ऊपर सवाल आया है। नॉन अलाइनमेंट के ऊपर क्वेश्चन नहीं है, नैम के ऊपर क्वेश्चन है। अब जीएस में भी क्वेश्चन आए हैं ऐसे। नैम, इंडिया जो है नैम को इन अ वे गुड बाय कह चुका है। The Prime Minister has not attended any of the summits of NAM from the last 3 times. Last time in 2024 में भी डॉक्टर एस जयशंकर ही went to the NAM summit. तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपसे कमेंट मांग रहे हैं। इंडिया जापान पर क्वेश्चन आया है, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसे डिफिकल्ट नहीं है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी की मेकिंग से एक उन्होंने आपसे एक्सपेक्टेशन ये कर ली है कि आपने एस जयशंकर जी की किताब पढ़ ली है और आपको ये भी पता है कि उन्होंने इंडियन फॉरेन पॉलिसी को कुछ पैरामीटर्स में डिवाइड किया है, ठीक है, कुछ फेजेस में डिवाइड किया है, बेग योर पार्डन। तो वो फेजेस कितने हैं? कुछ 6 फेजेस है। उसके लास्ट फेज में डू यू थिंक दैट वी आर इन द लास्ट फेज, टू व्हाट एक्सटेंट, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो थोड़ा सा टिपिकल हो गया, थोड़ा स्पेसिफिक हो गया, तो यहाँ पर हो सकता है कुछ लोगों को मुश्किल आई हो। फिर इंडो पैसिफिक का सवाल है विच इज ऑन एक्सपेक्टेड लाइन्स। इवेल्युएट इंडिया ईयू पार्टनरशिप है, इसमें घबराना नहीं था, पहले बस एक लाइन दे दी है, फिर कहा है इंडिया ईयू पार्टनरशिप को इवेल्युएट कर लो। वो इन जनरल एक कमेंट है इंडिया ईयू पार्टनरशिप। इंडिया ईयू पार्टनरशिप के लिए हम बात करते हैं, डेस्टिनी सेम है, बट दे आर नॉट एबल टू कम टुगेदर बिकॉज ऑफ एक्स वाई जी रीजन। आई वुड से बहुत इजी क्वेश्चन है, बिकॉज जब भी हम यू पढ़ते हैं तो हम इन जनरली एक इंडिया यू के ऊपर कमेंट करते हैं। हाँ, with the coming of Trump and after the COVID, there is a renewed push by EU towards India, and India is, also going ahead, and India is saying that we will also accept this push. तो अगर आप ये मेंशन कर सकते थे कि हमने एक FTA साइन किया है उनकी 4 कंट्रीज के, नॉट पर से EU बट इट्स एंट्री इनटू यूरोप। उसके बाद यू कैन टॉक अबाउट द फैक्ट दैट जो हमारा FTA है उसके ऊपर दोबारा से नेगोशिएशन स्टार्ट हो गई, यार we are looking to conclude the FTA, and EU is looking towards India as a partner in Indo-Pacific also. And their entire team was here after the coming of Trump, because Trump has been making their life difficult. So they are also looking for new partners. In that context, it was in the news. It was a lot in the news. And but they're not asking you all those things. They're asking you evaluate the relationship. That's it. So you'll have to tell that what are the areas of convergence. You'll have to tell what are the sticking points, and then you'll have to provide a way forward in which you will write all these things, that a renewed push is coming and it is being welcomed by India, and we are expecting to take it forward. तो एक ऑप्टिमिस्टिक नोट पर तुमको एंड करना है यहाँ पर। इसके बाद एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का क्वेश्चन आया है। WTO का क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। नॉन अलाइनमेंट 2.0 पे क्वेश्चन आता ही है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जो पहले आता है। आई वुड नॉट से कि डिफरेंट आया है। हाँ, इंडिया ने न्यूक्लियर रूबिकॉन को क्रॉस किया 1998 में, एंड पोटेंशियल ऑफ अ ट्राइलेटरल इकोनॉमिक एंगेजमेंट बिटवीन इंडिया, चाइना एंड नेपाल। अब ये दोनों क्वेश्चन ऐसे थे जिनको मैंने यहाँ पर प्लेस किया है कि ये बहुत पुराने थीम्स है, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट इंडिया क्रॉसिंग द न्यूक्लियर रूबिकॉन, उस समय के क्या चैलेंजेस थे, ये थोड़ा सा ज्यादा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है। इसके कंपैरिजन में लाइबिलिटी लॉ की बातें चल रही थी, बिकॉज ट्रम्प वांट्स टू सेल न्यूक्लियर रिएक्टर्स टू इंडिया, एंड उस कॉन्टेक्स्ट में देयर वाज लॉट ऑफ डिस्कशन गोइंग ऑन विद रिस्पेक्ट टू द liability clause in the India-US civil nuclear agreement. So that was in the news, वो expected था, but in 1998
कि हिस्टोरिकल सिचुएशन पे कमेंट, दिस वाज एन अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑल टुगेदर। तो अगर किसी को हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पता था वो ये लिख पाएगा, अदरवाइज फॉर अदर स्टूडेंट्स इट्स लिटिल बिट ऑन द टफर साइड। सिमिलरली जो थर्ड क्वेश्चन है, 8th का सी पार्ट है जो, ये काफी ज्यादा टफर साइड पर है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग ये आता होगा, क्योंकि ये सोच पाना कि एक ट्राइलेटरल इकोनॉमिक एंगेजमेंट बिटवीन इंडिया, चाइना एंड नेपाल क्यों होगा, कब होगा, कैसे होगा, किसने कहा, ये सब पुरानी बातें हैं। 2019 में जब चाइनीज दिस जी जिनपिंग द चाइनीज प्रेसिडेंट, ही वेंट टू नेपाल एंड वो विजिट बहुत समय के बाद आया था। इट केम इन द बैकड्रॉप जब इंडिया ने इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगा दिया था। केपी शर्मा ओली चले गए वहां और जी जिनपिंग कहते हम तो इंतजार कर रहे थे तुम्हारा, कब आओगे, रेडी टू हेल्प यू एंड वांट यू टू मूव अवे फ्रॉम इंडिया। तो उस कॉन्टेक्स्ट में इसके बाद जी जिनपिंग केम टू नेपाल इन 29। उस समय नेपाल के एक्स प्राइम मिनिस्टर प्रचंड ने ये बात की थी कि देयर इज दिस ग्रेट स्कोप ऑफ इंडिया, चाइना एंड नेपाल कलेक्टिवली वर्किंग इन अ ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क। एंड ये बात नेपाल में पहले भी हो चुकी है, इंडिया के साथ भी पहले है। इंडिया जनरली मेंटेन्स द साइलेंस ऑन दिस, बट I will have to do a little bit more research to see whether there is any current context of this or not, because if there is, probably I am missing out. Otherwise ये बहुत पुराना थीम है और इस थीम को क्यों रिवाइव किया गया है, क्या इसके पीछे कुछ हुआ है, थोड़ा सा मुझे भी समय देना, मेरे को थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी, बिकॉज इन माई ओपिनियन ये अभी रिसेंट का तो कुछ नहीं चलता था, ये पुरानी बातें थी, बट फिर भी पूछ लिया गया है, तो ये मैंने टफर साइड पर रखा है एज ऑफ नाउ, एज पर माई ओपिनियन। ठीक है, तो ये जो इंसाइट्स है यहाँ पर मेंशन है, यू कैन गो थ्रू इट एक बार। करंट अफेयर्स बेस्ड थीम्स भी मेंशन की गई है, ओल्ड थीम्स भी मेंशन की गई है, डिस्प्रपोर्शनेट एम्फेसिस वाली थीम्स भी है। ओवरऑल पेपर काफी ज्यादा एप्लीकेशन ओरिएंटेड। तो माय सजेशन, द कंक्लूडिंग रिमार्क्स वुड बी, प्लीज डोंट read and cram things in paper 2, try to make connections and फिर उसके बाद आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। जस्ट लाइक पेपर 1, पेपर 2 में भी आंसर राइटिंग की जरूरत है, स्पेशली इन द स्टैटिक पार्ट। जो पार्ट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का है, स्टैटिक है नेचर में, उस सब की आपको मिलेगी answer writing. And on that note, I would say that that's it. That was my analysis of paper 2. So I hope it adds value to your understanding. And I'll also present an analysis of paper 1, but I'll keep it on the side of trends. I'll keep it on the sides of, I'll try to analyze paper 1 more in context of PYQs, because there in PYQs relevance comes more. Here, as you see, current affairs definitely connect is there, but don't think that current affairs का connect बहुत ज्यादा हो जाता है, ऐसा नहीं है। आपको current affair का शायद एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी, ईयू के कॉन्टेक्स्ट में स्टेटमेंट दे दी गई, बट पूछा तो इवैल्यूएशन ऑफ इंडिया ईयू रिलेशन ही तो है। तो आपको एक ब्रीफ एनालिसिस तैयार करके रखना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू ऐड द लेटेस्ट व्हाटएवर करंट गॉसिप इज गोइंग ऑन, क्योंकि ऐसा थोड़ा ना होता है कि जल्दी जल्दी चेंज भी हो जाता है, चेंज को बहुत समय लगता है। तो सिंबॉलिज्म बहुत ज्यादा है आईआर में, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। एंड डोंट गेट, पेपर देखकर घबरा मत जाना, पेपर वेरी मच डुएबल है। हाँ, डेफिनेटली एक न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे। पुराने जितने भी नॉर्मल थीम्स आते हैं पीवाईक्यू में, फॉर एग्जांपल नॉन अलाइनमेंट का थीम बार बार आता है, आइडियलिज्म, रियलिज्म बार बार आता है, दोबारा पूछ रहे हैं, वो थीम्स को हम डेफिनेटली पीवाईक्यू से कवर करके अच्छे से प्रिपेयर करके रखेंगे। करंट अफेयर्स में कनेक्शंस बनाएंगे, कंटेंट इकट्ठा करना और इकट्ठा करना इस पे मत चाहिए, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, आपके पास समय ही नहीं होता इतना लिखने। तो on that note I'll end, and I'll see you very soon in the next video, and my suggestion, just quickly go through this and align it with your preparation, and uske baad thank you so much everyone, and once again all the very best.